Hey guys, welcome to my new video. And today in this video I am going to read a book. आज मैं इस वीडियो में एक बुक रीड करने जा रहा हूँ जो अभी करंटली मैं पढ़ रहा हूँ और उसके मैं 5th चैप्टर पर हूँ। तो मैं साथ में आपके पढ़ूँगा वो बुक और आपके साथ शेयर भी करूँगा कि क्या एक्सप्लेन करूँगा क्या लिखा है उस बुक में, और साथ में अपना पर्सपेक्टिव भी बताऊँगा कि मेरा क्या पर्सपेक्टिव है रिगार्डिंग द पार्टिकुलर टेक्स्ट ऑफ दिस बुक। एंड इस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। सो मैं ये बुक पढ़ता हूँ और आपके साथ शेयर करूँगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. So we are starting lesson 5, chapter 5, the rich invent money. Often in the real world it's not smart who get ahead but the bold. ये मैंने वैसे चैप्टर थोड़ा बहुत मैं पढ़ चुका हूँ, पर क्योंकि बीच में मेरी छूट गई थी ये बुक रीडिंग, मैं बाहर गया था, हल्द्वानी गया था मैं, तो उस सिलसिले में मेरी ये बुक छूट चुकी थी। ठीक है, तो मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ इसे ताकि मेरा रिवाइज़ हो सके, मुझे याद आ सके कि क्या क्या लिखा है इसमें, रिवाइज़ हो सके, इसलिए मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ थोड़ा। फिर आगे जैसे जैसे मैं पढ़ता रहूँगा आपके साथ शेयर करता रहूँगा, ठीक है। सो ऑफन इन द रियल वर्ल्ड इट्स नॉट द स्मार्ट हु गेट अहेड बट द बोल्ड. Last night I took a break from writing and watched a TV program on the history of a young man named Alexander Graham Bell. Bell had just patented his telephone and was having growing pains because he demanded for his new invention was so strong. The demand for his new invention was so strong. Needing a bigger company, he then went to the giant at the time, Western Union, and asked them if they would buy his patent and his tiny company. He wanted $100,000 for the whole package. The president of Western Union scoffed at him and turned him down, saying the price was ridiculous. The rest is history. A multi-billion-dollar industry emerged, and AT&T was born. So basically अभी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की स्टोरी बताई है कैसे उनकी कंपनी AT&T आई, ठीक है। The evening news came on the right after a story of Alexander Graham Bell. On the news was a story of another downsizing at a local company. The workers were angry and complained that the company ownership was unfair. A terminated manager of about 45 years of age had his wife and 2 babies at the plant and was begging the guards to let him talk to the owners to ask if they would reconsider his termination. He had just bought a house and was afraid of losing it. The camera focused in on his pleading for all the world to see. Needless to say, it held my attention. I have been teaching professionally since 1984. It has been a great experience and a rewarding one. It is also a disturbing profession, for I have taught thousands of individuals and I see one thing in common in all of us, myself included. We all have tremendous potential and we all are blessed with gifts. Yet the one thing that holds all of us back is some degree of self-doubt. It is not so much the lack of technical information that holds us back, but more the lack of self-confidence. Some are more affected than others. ये बिल्कुल सही बात कही है इसमें रॉबर्ट टी कियोसाकी ने कि एक चीज़ ऐसी है, हमारे अंदर बहुत ट्रेमेंडस पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा पावर है हमारे अंदर, पोटेंशियल है, ठीक है। पर एक चीज़ ऐसी है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, वो है लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। सम डिग्री ऑफ सेल्फ डाउट, ठीक है। ये हमें रोकती है आगे बढ़ने से, ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये होता है सबके अंदर, ऑथर ने खुद कहा, माई सेल्फ इंक्लूडेड, ठीक है। मेरे अंदर भी, मुझे भी कभी कभी होता है ये फील, ठीक है, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सम डिग्री ऑफ सेल्फ डाउट। सो ये नहीं होना चाहिए, हमें आगे बढ़ने से रोकता है ये, ठीक है। वंस वी लीव स्कूल मोस्ट ऑफ अस नो डैट इट इज़ नॉट सो मच अ मैटर ऑफ कॉलेज डिग्रीज और गुड ग्रेड्स दैट काउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आज के लोगों को जाननी बहुत ज़रूरी है, आज की जनरेशन को जाननी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इन द रियल वर्ल्ड आउटसाइड ऑफ एकेडमिक्स something more than just grade is required. I have heard it many times, many things: guts, chutzpah, balls, audacity, bravado, cunning, daring, tenacity, and brilliance. This factor, whatever it is labeled, ultimately decides one future much more than school grades do. बिल्कुल सही बात लिखी है। स्कूल ग्रेड्स आपके डिसाइड नहीं करते आप फ्यूचर में कैसे मतलब अपनी लाइफ जियोगे। वो सिर्फ एक टाइम के लिए आपकी सक्सेस को डिफाइन करते हैं, पूरी लाइफ के लिए नहीं, ठीक है। Inside each of us is one of these brave, brilliant and daring character. Yes, definitely.
There is also the flip side of that character, people who could get down on their knees and beg if necessary. After a year in Vietnam as a Marine Corps pilot, I got to know both of these characters inside of me intimately. One is not better than the other, yes, sure, right. Yet, as a teacher, I recognized that it was excessive fear and self doubt that were greatest detractors of personal genius. Yes, वही fear और self doubt. ठीक है. It broke my heart to see students know the answers yet lack the courage to act on the answer. Yeah, बिल्कुल सही बात कही है इन्होंने कि स्टूडेंट्स को आंसर तो पता होता है पर उस आंसर पे एक्ट करना वो उसके लिए करेज नहीं होता है उनके पास ना. Often in the real world, it's not the smart who get ahead but the bold. Yes, definitely. In my personal experience, your financial genius requires both technical knowledge as well as courage. If fear is too strong, the genius is suppressed. In my classes, I strongly urge students to learn to take risks, to be bold, and to let their genius convert their fear into power and brilliance. It works for some and just terrifies others. I have come to realize that for most people, when it comes to the subject of money, they would rather play it safe. I have had to field questions such as why take risks, why should I bother developing my financial IQ, why should I become financially literate, and I answer just to have more options. There are huge changes ahead. In the coming years, there will be more people just like the young inventor Alexander Graham Bell. There will be 100 people like Bill Gates and hugely successful companies like Microsoft created every year all over the world. And there also will be many more bankruptcies, layoffs and downsizings. बहुत सही बात कही है इन्होंने. So why bother developing your financial IQ? No one can answer that but you. Yet I can tell you why I myself do it. I do it because it is the most exciting time to be alive. I would rather be welcoming change देन ड्रेडिंग चेंज. ओके, सो इन्होंने यहाँ पे सिर्फ ये बात की है कि अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन हमें बढ़ानी चाहिए, अपना फाइनेंशियल IQ हमें बढ़ाना चाहिए. ठीक है. ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं, वाई टेक रिस्क क्यों लेनी है, प्ले इट सेफ, ये सब. ठीक है. फाइनेंशियल सेक्टर की अगर मैं बात करूँ, अपने फ्यूचर प्लानिंग वो सब, ठीक है, उसकी अगर हम बात करें, और इन्होंने यहाँ पे ये बताया है कि आने वाले समय में ऐसे बहुत लोग होंगे जो बिल गेट्स की तरह, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की तरह होंगे, और ऐसे बहुत लोग भी होंगे जो बैंकरप्ट होंगे, जो एकदम गरीब होंगे, ले ऑफ्स भी होंगे और डाउन साइजिंग्स भी होंगी फ्यूचर में. ठीक है. यहाँ पे एक छोटा सा है, ये पढ़ता मैं ज़रूर हूँ इसे. 20 years ago today, the list of entrepreneur success stories continue to grow and names like Jobs, Zuckerberg, Bezos and Breen are recognized around the world. Uber-like startups are the rage in the land of opportunity and global economy. I would rather be excited about making millions than worrying about not getting a raise. This period we are in now is a most exciting time, unprecedented in our world's history. Generations from now, people will look back at this period of time and remark at what an exciting era it must have been. हाँ, बिल्कुल सही बात है. इन्होंने कहा है यहाँ पे कि ये जो एरा है, जो करंट एरा है, ये बहुत अच्छा है हमारा, और जो हम फ्यूचर में, जब फ्यूचर वाली जनरेशन जब इसे देखेगी पीछे इस एरा को, तो वो बोलेगी कि मतलब कितना अच्छा एरा रहा होगा ये. ठीक है. क्योंकि इस एरा में हम चेंज वाले एरा में हैं, जो चेंज है. ठीक है. और चेंज तो बहुत नेसेसरी होता है एवोल्यूशन के लिए. ठीक है. डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए. इट वॉज द डेथ ऑफ द ओल्ड एंड बर्थ ऑफ द न्यू. इट वॉज फुल ऑफ टर्मोइल एंड इट वॉज एक्साइटिंग. सो वाई बॉदर डेवलपिंग योर फाइनेंशियल IQ? बिकॉज if you do, you will prosper greatly. सही बात है. And if you don't, this period of time will be frightening one. It will be time of watching some people move boldly forward while others cling to worn out life preservers. Land was wealth 300 years ago, so the person who owned the land owned the wealth. Later, wealth was in factories and production, and America rose to dominance. The industrialist owned the wealth. Today, wealth is in information, and the person who has the most timely information owns the wealth. The problem is that the information flies around the world at the speed of light. The new wealth cannot be contained by boundaries and borders as land and factories were. The changes will be faster and more dramatic. There will be dramatic increase in the number of new multi-millionaires. There also will be those who are left behind. बहुत सही बात कही है उन्होंने.
इन्होंने कहा है, बहुत अच्छी बात कही है यहाँ पे, बहुत सही बात लिखी है यहाँ पे कि 300 साल पहले जिसके पास ज़मीन थी वो बहुत अमीर होता था, ठीक है, लैंड जैसे हम कहते हैं लैंड प्लॉट, ठीक है, वो बहुत अमीर होता था, ठीक है। फिर आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसके पास इंडस्ट्री थी, इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत अमीर होते थे, ठीक है। अब का जो एरा चल रहा है वो नॉलेज का चल रहा है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन का चल रहा है, कि जिसके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। और यहाँ पे ये बात भी कही है कि इन्फॉर्मेशन फ्लाइज अराउंड द वर्ल्ड एट द स्पीड ऑफ लाइट। एक स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से इन्फॉर्मेशन ट्रैवल होती है दुनिया में। बिल्कुल सही बात है, यूट्यूब के थ्रू या अलग अलग गूगल के थ्रू, ठीक है, ये सब इंटरनेट के थ्रू नॉलेज ट्रैवल करती है। बिल्कुल सही बात कही है इन्होंने। तो एक ये भी यहाँ पे बोला है, द न्यू वेल्थ कैन नॉट बी कंटेन्ड बाई बाउंड्रीज एंड बॉर्डर्स एज लैंड एंड फैक्ट्रीज वर। जो न्यू नॉलेज होगी, जो न्यू दौलत होगी, जो न्यू वेल्थ होगी, वो जैसे बाउंड्रीज और इंडस्ट्रीज होती थी बाउंड्री के अंदर, उसमें सीमित नहीं रहेगी। जो नई आने वाली नई वेल्थ होगी, ठीक है। और फ्यूचर में बहुत ऐसे लोग होंगे जो नए मल्टी मिलियनर्स बनेंगे इसी वेल्थ से, नॉलेज से, विजडम से, इंफॉर्मेशन से। और कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो पीछे छूट जाएंगे। वही सिंपल सी बात है, कौन से लोग होंगे, कमेंट में मुझे बताओ कि कौन से लोग होंगे जो पीछे छूट जाएंगे, गैस करके बताओ। अभी हमने पीछे यहाँ पे पढ़ा था चेंज, जो चेंज नहीं होंगे, है ना, चेंज इज़ नेसेसरी। जो अपने आप को अपग्रेड कर लेंगे लोग, वो पीछे नहीं छूटेंगे, ठीक है। जो चेंज को वेलकम करेंगे वो पीछे नहीं छूटेंगे, ठीक है। जो चेंज को एक्सेप्ट करेंगे वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो वही है सिंपल सी बात, ठीक है। चेंज को हमें एक्सेप्ट करना है, ठीक है, वेलकम करना है चेंज को। आई फाइंड सो मैनी पीपल स्ट्रगलिंग टुडे, ऑफन वर्किंग हार्डर सिंपली बिकॉज दे क्लिंग टू ओल्ड आइडियाज। दे वॉन्ट थिंग्स टू बी द वे दे वर एंड दे रेजिस्ट चेंज। हाँ, वही बात आ गई यहाँ पे, बिल्कुल। I know people who are losing their jobs or their houses and they blame technology or the economy or their boss. Sadly, they fail to realize that they might be the problem. हर चीज़ को वो ब्लेम करते हैं, अपने बॉस को ब्लेम करते हैं, टेक्नोलॉजी को ब्लेम करते हैं और कंट्री की इकोनॉमी को ब्लेम करते हैं, पर वो अपने अंदर झांक के नहीं देखते कि कहीं वो प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। कुछ लोग ओल्ड आइडियाज़, हाँ ये बहुत सही बात लगी थी मुझे जब मैंने पढ़ी थी। ओल्ड आइडियाज़ आर द बिगेस्ट लाइबिलिटी। पुरानी सोच सबसे बड़ा लाइबिलिटी। लाइबिलिटी और एसेट्स का अगर आपको नहीं पता तो आप देख सकते हो नेट पे, ठीक है, सर्च कर लो। लाइबिलिटी वो चीज़ होती है कि मतलब जो मेरे लिए यूज़फुल ना हो, जो मेरे ऊपर बर्डन बननी है, जो मेरी जेब से पैसा निकाल रही है, ठीक है, एक तरह से बर्डन कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है, लाइबिलिटी। तो ओल्ड आइडियाज़ आर देयर बिगेस्ट लाइबिलिटी। जो पुरानी सोच है, जो उनके पुराने थॉट्स हैं, जो आउटडेटेड सोच है उनकी, वो उनकी सबसे बड़ी लाइबिलिटी है। वो बहुत सही बात कही है, बिल्कुल सही बात है। इट इज़ अ लाइबिलिटी सिंपली बिकॉज दे फेल टू रियलाइज that while the idea or way of doing something was an asset yesterday is gone. yes जो उनकी सोच थी वो पहले की थी, पहले yesterday कल की थी, और कल तो चला गया, अब थोड़ी ना है, उन्हें अपग्रेड होना पड़ेगा, चेंज को वेलकम करना पड़ेगा, तभी वो एसेट में कन्वर्ट होगा। उनकी जो प्रेजेंट करंट थिंकिंग है वो एसेट में बदलेगी। वन आफ्टरनून आई वॉज टीचिंग हाउ टू इन्वेस्ट यूजिंग अ बोर्ड गेम, ठीक है। तो ये कैश फ्लो के बारे में, इसके तो बाद में पढ़ेंगे ये सिर्फ, ठीक है। अभी 14 मिनट्स की हो गई है वीडियो, तो अभी बाद में पढ़ूंगा मैं, ठीक है, नहीं तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप बुक्स वगैरह नहीं पढ़ते हो तो मे बी आपको ये बोरिंग लगी हो वीडियो, पर कोई बात नहीं, मैं अपनी जो बुक्स वगैरह पढ़ता हूँ वहाँ से आइडियाज़ आपको शेयर करता रहूँगा थोड़े बहुत। और अगर आप एक बुक लवर हो तो आपको मे बी शायद आई होप अच्छी लगी हो ये वीडियो, और देखते रहिए वीडियो, ऐसी और वीडियो लाऊंगा। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में मुझे बताइए, अपने रिव्यूज़ दीजिए, ठीक है, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।